Good afternoon to all the participants. We are proceeding to the next session. So next lecture is by eminent personality of this university, Mr. Naved Hamid. He is the CEO and head of Sky Center, and he will be dealing about all the marketing, branding, startups. So you will greatly benefit from this enlightening lecture. So this will be very much useful. You will get in very short time you will get an insight about how you can, after you have planned for the entrepreneurship unit, how you can proceed further. So I hand over to Naved ji to discuss and deliberate on a critical aspect that we are actually a part of. Mostly in every educational institute, with an academic institute, organization or a professional one, there are a couple of mandates, and some of them we call it the pillars. Like in agriculture fraternity and agriculture landscape, we have some 78 agriculture universities in India. And among 78 agriculture universities, there are a couple of mandates and what we can call the objectives and the mandates and the work schedule of those institutes. Right from the education, we call that the teaching, research and extension. Education or teaching means we mostly are indulging in imparting the degree programs right from the UG, PG and PhD. Isn't it? Yes. Yeah. And this is the core crux of, if we will study the educational landscape of India, then this is the core crux of typical academic universities where they are imparting the degree programs right from UG to PhD and postdoc. And in certain cases, there are some of the specialized programs, we call that the research programs, where they are a part of some core research program, जहाँ पे MSc, PhD या PG जो है या postdoc वाला बंदा जो है, they indulge themselves in some sort of a critical research aspect. And in agriculture fraternity, we have the same line, same provisions as well as the pillars over here. Right from the imparting the degree programs, UG, PG and PhD, then coming up with some research problem statements and starting working on coming up the outcome of that particular problem, and then after getting the research, then disseminating that research to the public or the farmers for their welfare. We call that the social impact. And we brainstormed a couple of times. Is it the outcome and the impact we should have? Is it like the education system is like having the degree in the hands? आपके पास UG है, now you are postgraduate, now you are PhD, now you are the postdoc. Is it the outcome of the educational system in India? Having the degree in hands and having some quantification marks in hand, 95%, 99%, 90, 100%. Is it the outcome and impact of our education system? We started brainstorming on this particular stuff. And then similar case in the research part, where the government is pushing lot of efforts and the money to channelize the same. Example, you all are from, I don't know your background, but mostly it seems there are a couple of students from MSc, MTech, UG or some PhD program. Now, if we take the example of an MSc student, he or she continues that particular research problem for a couple of years, till he or she attains that particular degree जब उनके पास आती है. Is it like कि उसने वो research किया 3 साल 2 साल for only having the research publication in his hands? Is this the outcome of the research? I told you before, is the degree, earning a degree, the outcome of the teaching? क्या वो outcome है इसका? कि आपके पास degree आ गई 4 साल के बाद, now you have a degree in hand, now you can do a number of things. No. Similar is the case with the research domain.
Is it like you are doing the research for the sake of getting the publications out of that? Is it like, you are getting for that for the sake of having a book publication in hand? Yeah, book chapter in hand? No. उसके बाद सोचना है so that you may get a desired outcome of that particular exercise. I use the term desired outcome out of that particular exercise. Desired. Desired means if you are here in this university for a sort of a program, and outcome is linked with that particular stuff, isn't it? Outcome हर एक के साथ है. अब खाना खाते हो उसका भी एक आउटकम है कि मुझे एनर्जी आएगी, मैं काम करूंगी. या किसी का ये होता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं चावल खाऊंगी, मुझे नींद आएगी. तो कुछ ना कुछ आउटकम तो है. Startups among the young minds of the Jammu and Kashmir, or we can call the country as well. How? Now the question mark is how. कोई भी चीज करने के लिए you need to have a road map. यहां इस इंजीनियरिंग डिवीजन तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता आपने इख्तियार किया होगा. You need to have follow a sort of a road map to reach this destination so that we may just interact in this particular hall. We may accumulate and just interact on certain sort of a based on topics. कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना. दरवाजा होगा नहीं तो आप कैसे आओगे? Is it possible? Is it possible to enter a room जिसका कोई दरवाजा न हो, जिसकी कोई ओपनिंग न हो? So, ये इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए you need to have a sort of a plan, a model and a road map जिसको आप फॉलो करके इस एरिया में आ सकते हो. And what is the road map? And the road map is well defined by the Ministry of Education, Government of India. The road map, maybe you might have gone through, a model we call that NISP. I don't know कि आपने सुना है नहीं सुना है. NISP. It's a policy, it's a national level policy. We call that National Innovation Startup Policy. Now please try to understand this. It is National Innovation Startup Policy. It's not National Innovation Business Policy. Please understand this point. National Innovation Startup Policy, not National Innovation Business Policy. क्यों? Startup ही क्यों? Or why this policy has a focus on the academic universities? मैं थोड़ा सा अंतर आपको बताऊं. There is a lot of difference between a typical business unit and a startup enterprise. We somehow, because we have to understand the ecosystem first, then we may be able to get into this, the point of what the startup is and what business unit is all about. And why there is a need of having a startup culture, in-house startup culture within the university and within that particular region. Why? Why there is a need? Simple difference between a business and a startup is, आप सभी यहाँ जो बैठे हो, you all are UG graduates, post graduates or PhD. आप में से कोई है जो 10th fail है, 10th pass है? Yes or no? Nobody. Nobody is there. So you are well qualified persons. And what is now the antar and fun of having a degree in hand and starting the same activity what anybody can having sort of an without having a degree, having an illiterate person. Abdul Rashid hai koi, Vikas hai koi, he even don't know what the 8th standard is, 9th standard is, but he is owning a sort of a firm worth 1,000 crores. And simultaneously you are a person having huge chunk of degrees in hand, and आप भी वही चीजें कर रहे हो जो उसने किया है. What's the अंतर? अंतर है कुछ? Yes or no? अंतर है कुछ? No. The अंतर is कि जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता, वो विकास नहीं कर सकता जो लिटरेट है. कैसे? वो बिजनेस खोल सकता है बट वो स्टार्टअप नहीं खोल सकता. Don't go with a typical statement, startup. It's not startup, starting something. It's not like that.
It is when you have a disruptive concept and idea in mind that can disrupt the market. आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो, suppose there are n number of problem statements in agriculture. One of the critical problem statement is waste management. ये विकास नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है जिसको पहचान हो, पता हो एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है. Suppose we have waste management. Suppose I can state an example. The student is from this particular division. He came to me, my office, couple of years back, with a simple idea. Sir, I was at a barber's salon shop. Then there I was for a cutting, and then I found that there is a huge chunk of waste. जो आप human hair है ना, जो कटाई करके वो नाई फेंकता है, there is a huge chunk of that particular waste. Sir, why can't we start an exercise in converting that particular this waste into some viable product? And this was very new to me at those times. Then we started couple of and we come up with a formulation जहाँ पे हमने इस human hair को convert किया है into a liquid fertilizer. Isn't that wonderful? Ahmed Bashir. And this is what the disruption is all about. ये विकास नहीं कर सकता. And this makes him out of the sort of a what we can say out of the box initiative, but it makes you out from that particular herd and crowd. Now, जो उसको आइडिया लेके आया, जो डिसरप्शन लेके आया, और जो ये ह्यूमन एयर जो जाया होता था, वेस्ट होता था, इससे हमने एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया. Now he has his own well established startup, we call it BBNGG, Be Blessed and Go Green, जिसको अपने आइडिया के आधार पे 50 लाख रुपया ग्रांट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. Isn't that disruption? वो भी तो आपकी तरफ बढ़ रहा था. This is the antar of having a sort of a start, difference between a startup and as well as the business unit. When you have some sort of innovative concept that has a potential to disrupt the market, then you are in the startup arena. Otherwise, ITC कोई दूध बना रहा है, ITC chips बना रहा है, Lays वो बना रहा है, ये बना रहा है. Ghulam Mohammed is here, Vikas is here, Vikram is here, coming up with a retailing shop and just selling. Selling process जो है ना, जैसे typical business process, वो कोई भी कर सकता है. And that's why ये चीज, ये ecosystem develop करने के लिए, we came up with a policy. We basically customized the National Innovation Startup Policy. What is the beauty of that National Innovation Startup Policy? मैं आपको बताते चलूँ. What is the beauty of that NISP? We showed guts to the nation that we can customize that NISP to SISP, Sukansky Innovation Startup Policy. That policy gave you a provision कि if a faculty having a very innovative concept and the research in hand, अब मैं जो मैंने बोला वो अर्थ, क्या वो रिसर्च का यही अर्थ था, आउटकम था कि पब्लिकेशन इन हैंड होनी चाहिए. I being as very young, what we can call the manpower of this particular this university, I am having some 157 publications in hand, and I am the author of some 37 books. कितने? 37. मगर मुझे अब तक कुछ फायदा नहीं आया उनसे. Honestly speaking, it's just like as a show off. I'm just pitching those things in a well-established podium या forum में, जहाँ पे अपने आप को बड़ा चढ़ाने के लिए मुझे ये काफी है. बड़ा चढ़ाने के लिए मैंने पब्लिकेशन 150 निकाले हैं और 37 जो है मेरे एज बुक्स मेरी पब्लिकेशन पब्लिश हुई है. क्या इसका अर्थ तब होना चाहिए वो जो मेरा 157 पब्लिकेशन है, एक पब्लिकेशन मेरी ऐसी हो जो मार्केट तक पहुंच जाए और मार्केट में उसने एक सोशल इंपैक्ट लाया हो. जो हम फेस कर रहे हैं एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में, एग्रीकल्चर में, उसमें एक ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए कि मैंने उसको कन्वर्ट किया हो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट में और उससे अभी लाभ, उससे भी फायदा उठाए कस्टमर, बट वैसा कुछ है नहीं. एंड नाउ द पॉलिसी गिव यू अ प्रोविजन कि इफ ए फैकल्टी बीइंग इन दिस सर्विस, अगर ये नौकरी भी कर रहा है, अगर ये 2.5 लाख 2 लाख भी ले रहा है, एंड इफ ए स्टूडेंट बीइंग इन एनी डिग्री प्रोग्राम, he or she is pursuing UG, PG or PhD or postdoc from this particular university, if he or she has some disruptive and innovative concept that can have a large impact on the society, we are here to provide you a platform and a podium where you can come up with your own startup and we will support you, we will fund you, we will handhold you, and so that you may have a
social impact out of that particular exercise. Isn't it a change? Isn't it a change? A student who is pursuing a UG, जिसको 4 साल पहले दिमाग में 4 साल सीखने में लगता है कि यार फिर उसको पता चलता है जब डिग्री हाथ में आती है मैंने UG किया है। यही होता है ना, मैंने भी तो किया है, मैंने तो अभी भी हाल छोड़ा है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ छोड़े हुए पढ़ाई। यही तो पता चलता है 4 साल में, पहले पता नहीं चलता कि करना क्या है। वही आपकी यूनिवर्सिटी में वो जो बच्चा है UG का, वो 40,000 की सेल है उसको पर दिन, महीने में कितना है? कैलकुलेट इट। 1,20,000 कहां क्या क्या कह रहे हो? वाले कौन बोल रहा है? 1,20,000 40,000 तो दिन का सेल है। ये कौन बोल रहा है 1,20,000? अब इंजीनियरिंग हो या कुछ और हो? 12 लाख रुपया एक महीने में उसकी सेल है। यहाँ जो प्रोफेसर है उसको 2.5 लाख की है। सर मैं गलत कह रहा हूँ? yes, maximum 12 लाख उसका बच्चा ले रहा है जो यूजी में जिसकी भी डिग्री हुई नहीं है। एंड उस बच्चे को आप समझ आएगा ना, दिस इज द फन ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। अब मुझे डिग्री वगैरह की क्या जरूरत है? दिस इज the culture we are now trying to foster, we are trying to imbibe in this particular ecosystem. There are a lot of other steps to talk, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, but sorry for that. Basically, I am very short of time. I am waiting to catch up with our vice chancellor. So this is what we are coming up with new strategies so that we can redefine. We can't change the education system, but we can redefine it. We can redefine the education model. पढ़ना तो है, पर वो कौन कह सकता है आपको पढ़ना नहीं है? पर पढ़ने का एक अर्थ निकलना चाहिए। क्या आप मुझे यस और नो बोलोगे? क्या ये सही नहीं है कि एक बच्चा पढ़ रहा है बट उस बच्चे को आप एक डायरेक्शन दे रहे हो, उसको मेंटरशिप दे रहे हो, अगर वो 0 कमा रहा था, अगर वो 10 रुपए ही कमाए, क्या वो सही नहीं है? यस और नो? यस और नो? इसमें क्या आपत्ति है? अब मैंने आपको अंतर बताया। There's a difference between a typical business and a typical startup. अब आप उसमें जाना चाहते हो, इसमें अगर आप स्टार्टअप तो फिर दिमागी काम है, और वो दिमागी ऐसा काम है जो आपने किया वो कोई और नहीं कर सकता। इन इकोनॉमिक्स वी कॉल दैट द मोनोपोली। जिस सिस्टम में मोनोपोली हो उसमें जितना पैसा कमा सकते हो उसमें कमा सकते हो, यही तो है ना। That's why for that we started the journey in that particular incubation center, and then where the model why our incubation center is different from other incubation centers. In Jammu and Kashmir, we have some 16 incubation centers located at different locations. Right from in the Jammu region, we have some 6, 7, and the rest in the Kashmir region. And the main aim and crux objective of those incubation centers is same. The mission and motive is same. Now it's up to you how we can channelize and capitalize that particular activity. मैं कितना इस डोमेन में पेन्स ले रहा हूं वो मुझे देखना है। और रिसेंटली on the basis of certain parameters, this incubation center has been awarded as a top most incubation center in Jammu and Kashmir by government of Jammu and Kashmir. Recently it has Recently, last week, on the basis of certain parameters. मैंने आपको बोला कि why, अगर मुझे कोई आपको भी पूछेगा कि आप क्यों बता रहे हो सुकास के इनोवेशन सेंटर का, what are the USPs? अगर मेरा नाम नवीद है, मुझे कोई बोलेगा नवीद ही क्यों? What are certain USP, unique selling propositions? इस नवीद में इतनी क्या खासियत है कि ये अपने आप को इतना मार्केट कर रहा है? इस यूनिवर्सिटी में इसकी इतनी क्या खासियत है कि इसकी क्या USP है कि इसको कोई भी ले सकता है? एंड मैं बार-बार हम हमेशा खासतौर पर अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं, we don't here in university we don't call students, we call them the student innovators. और मैं इनको बार-बार बता रहा हूं कि आपको 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है आप डिग्री, आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को मार्केट कर पाओ। बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आप प्रोडक्ट ही हो ना, हम बना रहे हैं ना आपको डिग्री करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। नाउ you are the product of this particular university and you need to come up with a plan by which you can market yourself to the market. आपके टेकर्स होने चाहिए मार्केट में, जिसको आप टेक्निकली में प्लेसमेंट बोलते हो। या तो अपना दिमाग आपने लगाना है कि अगर 10 साल मैंने पढ़ा है,
10 साल का ये काम नहीं है कि मैं किसी के यहाँ जॉब करूं। 10 साल का ये काम नहीं है कि मैं किसी के यहाँ जो है भीख मांग के उनको बोलो 10,000 15,000 मुझे प्रोजेक्ट पे लगाओ। 10 साल का ये होता है कि 10 साल मीन्स ए ह्यूज टाइम। 10 साल में आपका दिमाग इतना तैयार होना चाहिए कि आप खुद की चीजें आइडिया करके उन आइडिएशन को ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा के आप एक अपनी पहचान बना सकते हो। मेरा जो लेक्चर है कम से कम 2-3 घंटे भी चल सकता है अगर मेरे दिमाग में चीजें आ रही है, थोड़ा सा इसको ये करूं। आप गवर्नमेंट जो है आप लोगों पे, मैं आपको थोड़ा बताऊं, जो एमएससी आप करते हो या पीएचडी करते हो, गवर्नमेंट इज पुशिंग 3 करोड़ रुपीस 3 CR फॉर ए मास्टर स्टूडेंट। हाउ? ये किसी ने बताया नहीं होगा। आप एंट्री मारते हो यूनिवर्सिटी में एंड देयर इज अ सेमेस्टर सिस्टम। ओके, सपोज एमएससी में आपको 4 सेमेस्टर करने हैं या एट द मैक्स 5 सेमेस्टर करने हैं, 4-5 में तो होता है। एंड देयर इज अ फी लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम लाइक 25,000। वो कितना हो गया एमएससी में? 1 लाख या 1.5 लाख। द स्टोरी इज डिफरेंट। द स्टोरी इज डिफरेंट। अगर हमने आपको समझाने में हम कामयाब हुए ना, मे बी शायद दैट विल समहाउ कंपेल you to come up with a logical outcome out of this exercise। आपको मुझे बताओ, एक एमएससी स्टूडेंट के पास कितने एडवाइजर होते हैं उसके एडवाइजरी में? हाउ मेनी एडवाइजर्स असाइन्ड टू एमएससी स्टूडेंट? नॉर्मल 6 सर, 5 और 6 मैक्सिमम। उनकी लेवल होती है असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर। अब मान के चलो वो जो 6 है उनकी एवरेज सैलरी 1.5 लाख रुपए। एक महीने में कितनी होगी? एक महीने में 6 की कितनी सैलरी होगी? साल में कितनी होगी? 1 करोड़। 3 साल में कितनी होगी जब तक आपकी डिग्री हो जाएगी? 4 करोड़। यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट इज पुशिंग a huge amount for a single degree, जिसको आप दिखाते हो फिर ये हमने डिग्री की है एक कम्युनिकेशन में, ऐसे। वो 3 करोड़ की डिग्री होती है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? मुझे रॉन्ग करो, मुझे करेक्ट करो अगर मैं गलत कह रहा हूं। प्लीज मेक मी करेक्ट। दैट्स अ 3 CR डिग्री। और उस 3 CR में आपका तो हक बनता है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। Whether we are Muslims or Hindu or from the other religion, there is a core responsibility। हमें कल पूछा जाएगा ऊपर जाके कि यार आपने क्या किया है? The plan by which we can, just change the visualization pattern of a student। जो हम सोच रहे हैं जो है, हमें कुछ और सोचना था, कुछ और कर रहे हैं। हमें लगता है कि चलो ठीक है, दिन चलता है, सर ने पढ़ा लिया, हम एग्जाम करेंगे, पेपर हो गया। वो जो है वो अब दैट्स अ स्यूडो एक्सरसाइज। क्वेश्चन आ गया ऊपर, आपने आंसर लिख दिया। When I was in masters, there's a component we call it a comprehensive। ये ऑन रिकॉर्ड है, there's a comprehensive। उसमें जो आपने 2 साल में पढ़ा है, जितने भी किताबें पढ़ी है, वो एक साथ ही पेपर होता है। yes। क्या ये मुझे बताओ, कोई तो तुरंत खान तो है नहीं कोई, वो 40 किताबें पढ़ सकता है और एक फिर पता नहीं क्वेश्चन कौन आएगा, फिर वो आंसर लिख सकता है। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। और मुझे पता है उसमें क्या होता है, वो मुझे भी पता है, सबको पता है। वो आउटकम नहीं है, वो तो एक दैट स्टार्ट ऑफ एन वो सिस्टम में वो चीजें कुछ इंटरलिंक्ड है जो हमें पता ही निकल जाएगी और हमारे पास डिग्री आ जाएगी। बट कुछ द गेम इज डिफरेंट। और आज जो आपका मौका है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। 4 साल के बाद जो आपने 4 साल पहले कर सकते हो वो फिर नहीं कर सकते। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, वी जो हम हैं, जो अपना जो नवीद है, नवीद अपने लिए एक मोटिवेटर हो सकता है, मुझे कोई मोटिवेटर नहीं कर सकता। आपके लिए आप यू आर द बेस्ट मोटिवेटर। आपके लिए यू आर द बेस्ट मोटिवेटर। आज तो किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। किसके पास फुर्सत है किसी को मोटिवेट करे? किसके पास फुर्सत है किसी को गाइडेंस करे? So these are some of the couple of things we are basically doing as an incubator. So these are some of the facilities you might have gone through there. So this is the policy we are a part of। कि हमने क्यों बनाया? So that we can, there's a term at national level, ease of doing business।
हम यहाँ करते हैं ईज ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। हमने आपके लिए एक माहौल ऐसा सिस्टम बना दिया है ताकि आप खुद उसको समझे, खुद अपने आप में ब्रेनस्टॉर्म करें एंड देन come up with the some of the innovative concepts so that we can help you to take those to the next level. These are some of the आपके लिए जरूरी नहीं है, these are some of the the achievements जो हमने किए हैं। और मैं आपको बता दे चलूँ कि some 30 करोड़ हमने जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने ही अपने आइडियाज को रिफाइन किया, आइडिया थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। डिफाइन एन आइडिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डिफाइन एन आइडिया। हर कोई अपना अपना बताएगा। डिफाइन एन आइडिया, यस प्लीज बताइए। मिस्टर डॉक्टर गिटार बताओ। मैं इसे गिटार सीखता हूँ। आपका मार्केटिंग हो, आपका उर्दू हो या अंग्रेजी हो, डिफाइन आइडिया। Which is new in the market. आराम से आ जाएगा, अभी आपको भी टाइम आ जाएगा। सब जैसे मैं वेजिटेबल का हूँ तो मैं वेजिटेबल में ही करना चाहता हूँ, तो मेरा डिफाइन एन आइडिया, IDA। मैंने तो वेजिटेबल लाया नहीं कहीं पे, उसको मैं यूटिलाइज करूँ। मैं कह रहा हूँ समझो, इसमें इतना तूफान है नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आंसर तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ गिलास में पानी में इसमें धक्का लग गया, गिलास में पानी गिर गया। जहाँ पे आप हो, आपके पास पेन भी है, आपके पास नोटबुक भी है, आपके पास फोन भी है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इमीडिएट स्टेप क्या होगा, आप क्या करोगे? करोगे मेरे भाई, वही तो करोगे, मेंटर्स हो, वही तो करोगे ना। ये सोचो, ये जो यहाँ करना और यहाँ करना, फोन उठा यही तो बोलते हैं ना। फिर बोले यार मैं तो जल्दी, मेरे दिमाग में आइडिया आया, फोन बज गया। ये आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम से, सिचुएशन से। मैं आपको बताऊं, वहीं पे रखना आपका Mind that we can manipulate to make some livelihood or to get something out of it. Yes. The Next. beneficial. Sir, something which is not available in the market. ये ऐसा कुछ करूँ कि ताकि मैं किसी को प्रॉब्लम सर मार्केट में कि समथिंग आराम से, आप सही कह रहे हो, जो आपको मुझे आया समझ, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मुझे आया समझ। चलो मैंने आपको समझा, बस इतना। हाँ जी हीरो, समझ गए। आप बताओ। आइडिया का ये है कि कोई प्रॉब्लम अगर आए तो मुझे प्रॉब्लम मैंने बोला ही नहीं आपको, प्रॉब्लम बताओ। मैंने बोला डिफाइन आइडिया, आइडिया मींस आइडिया, बस। आइडिया वही जो हमारे दिमाग में आता है कुछ भी देख के कि उसको मेरे solve दिमाग में आता है कुछ चीजें सॉल्व। हाँ जी नेक्स्ट। Sir, my idea was just 10 minutes, sir. American Marks actually. I am CEO of FPU. वेरी वंडरफुल सर, ठीक है, वंडरफुल। तो आपके मेरी लेवल बराबर है। हाँ, तो सर एक्चुअली हमारा वहाँ चेरी और स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक। मोस्टली हमारा वहाँ ज़ाया होता है। आइडिया ये है कि उसको उस ज़ाये को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स एन आइडिया। वो सवाल उस लॉस को कैसे बचाएं? Yes. चलो ठीक है, आपने थोड़ा सा खुलासा किया। हाँ थोड़ा जल्दी। Something solution for the problem. It's an intangible thought process. अब मैंने ना बैड बताया ना मैंने सही बताया। हाँ जी मैम, मैंने बैड बताया ना मैंने गुड बताया। Intangible thought process. Now the role of an incubation center is, जब आप जैसे ये मेरे पास intangible thought रखेंगे टेबल पे, ये तो दिखता नहीं है, पर मेरा काम ये है उस intangible thought process को कन्वर्ट करके एक tangible endure technology product आपके सामने लाए। We call that the POC, and this is the journey of an incubation center is from idea to POC. Idea means intangible thing, POC means proof of this concept। जो आपने दिमाग से concept निकाला, अब देखो ये proof है। Yes, आइडिया का भी पेटेंट। So I was saying that useful thought being converted into a reality. basically yeah right, useful आप ऐसे नहीं कह सकते। basically in this journey there is no sort of an bad and good and eligibility of ideas. You can't say कि मेरा अच्छा है इसका गलत है, मेरा अच्छा है इसका गलत है, and that's why we focus on the crazy ideas। ये इंटेंजिबल जो आपको भी नहीं पता कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उस आइडिया को इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में। यहाँ पे हम उसको माहौल देंगे। माहौल मीन्स यहाँ एसी वेसी नहीं चलेगा, यहाँ माहौल होगा, यहाँ आपको कनेक्ट किया जाएगा राइट मेंटर के साथ, यहाँ आपको माहौल दिया जाएगा। आपको पैसे चाहिए, आपको पैसा मिल सकता है।
यहाँ आपको माहौल दिया जाएगा, आपको फैब्रिकेट करना है, कोई चीज बनाना है, आपको फैब्रिकेशन डिजाइन फैसिलिटी दी जा सकती है। आपको कोई बायो इंक्यूबेशन आइडिया है, आपको एक बायोटेक्नोलॉजिकल लैब फैसिलिटी दी जाएगी जहां पे आप इस अपने आइडिया को एक शेप दोगे। वी कॉल दैट द शेप POC, proof of concept. There are phases of idea generation. Idea, POC and MVP. Idea, POC and MVP. Suppose idea was कि मुझे फोन बनाना है, जिसने फोन बनाया उसने दिमाग में सोचा, हाँ जी आप भी सुनिए ये जो लाइन है ये सारी, उसने सोचा कि एक ऐसा डिवाइस में बनाऊं जहां वायरलेस कम्युनिकेशन हो। ये आइडिया है ना? ये आइडिया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन हो, जिस कम्युनिकेशन से मैं कम्युनिकेट करूं तबस्सुम के साथ, आरजू के साथ, अजरा के साथ, विकास के साथ, इसके साथ। ये कंसेप्ट था और लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, कैसे हो सकता है, विदाउट तार कैसे हो सकता है, विदाउट वायर कैसे हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। कंसेप्ट था, कंसेप्ट था, कंसेप्ट था, कंसेप्ट था, उसने काम किया, काम किया, काम किया, काम किया। वो आइडिया था, इंटेंजिबल थिंग था। उसने बोला आइडिया को मैंने ट्रांसलेट किया, दिस इज द POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। जो मैंने सोचा था वो इस पे प्रूफ है। करो अब कॉल किसको करना है, अजरा को करना है, मुफ्ती को करना है, इसको करना है, किसी और को करना है। दिस इज व्हाट द जर्नी ऑफ इंक्यूबेशन इज। समझ आया? यही जर्नी है। और मैं आपको कहूँ साथ तो निकले, मैं कहूँ किताबी विताबी दलीलें तो ठीक ठाक है, डिग्री विग्री तो आपको आ जाएगी, वो डिग्री कोई आपको खाई नहीं। या ऐसी भी कोर्सेज हैं, आप US की अभी लैपटॉप खोल के आप US में एनरोल कर सकते हो और वो डिग्री आपको 2.5 साल के बाद आ जाएगी और फिर आप USC रिटर्न डिग्री होल्डर बन जाओगे। और द फन ऑफ हैविंग ए डिग्री जिसका कोई खुद डिग्री का फन नहीं है। बात समझ आई? डिग्री का भी फन होना चाहिए ना। घर पे जब अचार बनाते हैं तो अचार को भी बनने के लिए कम से कम 12 दिन या 14 दिन 20 दिन लगते हैं। और अगर वो अचार ऐसे खुद की, हमको क्या समझ आएगा खुद मतलब क्या है? अगर वो अचार सही से बनेगा नहीं, क्या वो अचार खाओगे? उसमें कितना भी पैसा आपने लगाया उस जार को बनाने के लिए, वही अचार आप हो, आप मटेरियल हो, आप मूली हो, ये गाजर है, पालक है, ये सब्जी है, ये नमक है, ये है। हम आपको इसमें BSc, BTech, MTech के आचार के बॉक्स में फिट कर रहे हैं। अगर ये लास्ट में ये आचार फंसा नहीं, अगर ये बना नहीं ये आचार, सर जी इसका मोल कौन पकड़ेगा? आपको मार्केट में पकड़े, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ। आप हमारे प्रोडक्ट हो, वो आपको समझना है। और मैं तो लेक्चर दे के मैं भी निकल जाऊंगा, खाना वाना खा के मैं बैठ जाऊंगा। बट नाउ you are the real change makers of the society. If you have to change the society, if you have to change the education system, then you have to change the mindset. जो अपना mindset है ना उसको change करो। कोई धर्मी है वो अपने लिए है, कोई मुस्लिम वो अपने लिए है, ये अपना धर्म चलाए, वो चलाए, वो चलाए, ये चलाए। बट धर्म के साथ साथ you have to see the career prospects of yourself. आप कैसे आप अपने आप को स्केल अप करोगे, पेस अप करोगे, ताकि एक आपके हाथ में कुछ ऐसा आ जाए जिससे अपने लिए आप काम कर पाओ और लोग भी जुड़े। सपोज आई एम नॉट एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, मैं कल कोई अच्छा कंसेप्ट सोचूंगा और मैंने एक कंपनी खोली, आप ही दर बदर PG PhD करके मैं आपको ही बोलूंगा मैं आप 5,000 दूंगा, आपको 8,000 दूंगा, आपको जो है 20,000 दूंगा, आप मेरे अंडर ही काम करोगे ना? क्या वो आपकी we call that the term, that's sort of an HARRASMENT होती है, वो भी होता है, बट हमें समझ नहीं आता। So we need to come up with a plan. Or why educational institutes are focusing on coming up with incubation? फिर ये आता ही नहीं, अभी किसी को समझ आया नहीं है, फिर ये आता नहीं। This is only, we are not banks. This incubation is not SBI, JK Bank, PNB, वो तो गवर्नमेंट ने बनाई है। We are only the what we get a system that can change the mindset of this particular, that can show you the direction कि आपको जाना कहाँ है। डिग्री तो आपके पास है, बट आप एक अल्टरनेटिव वे भी ले सकते हो जहां अपना करियर बना सकते हो। क्या आपत्ति है इसमें? बात समझ आई? This is the journey जो मैंने खुद देखी है, within short span of खुद time देखी है। Iscast वो has मैं आपको created- बताऊं, this incubation center स्टेट लेवल पे तो इसका मिला है। This incubation in previous year, this incubation center has been selected for Star Startup Ecosystem Award. It is the highest award in the regional ecosystem जो पेरिस में मिला। और पिछले साल पता है किसको मिला था? 24 में हमें मिला, 23 में किसको मिला था? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर UK को, because she was a minister of innovations.
यूके देर जो अब एक हिंदुस्तान में एक छोटी जगह श्रीनगर में भी छोटी जगह शालवर मस्त तो कोनस मस्त एक कोने में एक इंक्यूबेटर में एक बंदा रहता है उसको दिस इज आई एम नॉट डिपिक्टिंग आई एम नॉट पुशिंग those things putting those things on the table मैं अपना दिखाऊं आपको मैं तो कुछ हूं नहीं बट मैं कह रहा हूं कि there is a lot of scope in this particular incubation arena अगर आपको आप as a student as a faculty if you have to अगर आपने आपको एक थोड़ी पहचान देनी है ना this is the only domain जहां पे अभी wide open है सारा रास्ता अभी रास्ते में चलोगे तो आप नजर आओगे जिस रास्ते जिसमें आप हो ना डिग्री वाले सिस्टम में इसमें तो आपसे पहले भी तो बैच निकला है सर आपसे पहले तो उसके पहले भी तो सुपर सीनियर एक्स्ट्रा सुपर सीनियर उनकी दलील पता नहीं अब वो कहाँ है अब आपने वो अगर वो यहाँ रहना भी है जस्ट थोड़ा सा कहवा अगर उसका भी पियोगे ना तो मजा आएगा क्योंकि उसमें सैफरन डला है दिस इज ये जो है ना ये पिक्चर इससे थोड़ा सा आपको बूस्ट अप होगी when we started the ecosystem when we started the journey and that my policy was being what we जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का फोटो है ना इन्हें खुद नहीं बनाया मैंने ये उसमें देख सकते हो आप तो मेरा नाम भी लिखा है This is very big achievement. लिखा है मेरा नाम लिखा है तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी भी आपको एक्सेप्ट कर रही है कि जो इनकी पॉलिसी है ये पॉलिसी सही है एंड नाउ रिसेंटली आई हैव बीन अवार्डेड एज द बेस्ट इनक्यूबेटर बाय दिस क्या कहते हैं ऑनरेबल सीएम और मेरा देखो जो है बातचीत कुछ चल रही है ना चल रही है ना मैं देख रहा हूँ इसकी तरह मुझे देख रहा है तो ये कह रहा है कि शाम को मेरे पास आ जाना यहाँ तो 1 लाख बुलाया है आपको 1 करोड़ दे देंगे These are some of the connects we are a part of from right from the government as well as the corporate and this is the policy we have framed and for streamlining this particular ecosystem these are we call there's a term at national level we call that a unicorns सुना है पेशेंट भाषा यहाँ कितने कश्मीरी कितने हैं मैं कभी बार यूज करता हूँ कश्मीरी निकल जाती है इसलिए मुझे समझ जाती है जैसे यूनिकॉर्न के वहां पहुंचना दैट्स द नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग राइट नाउ जो सिस्टम है इकोसिस्टम है नेक्स्ट इम्पॉसिबल है हमने सोचा कि व्हाई कांट वी कम अप विद अ पॉलिसी जहां पे जो अपनी स्टार्टअप है जिनका कम से कम टर्नओवर 1 सीआर है 1 करोड़ है 2 करोड़ है 4 करोड़ है 10 करोड़ है उनको एक हम पहचान दे दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ टर्म वी कॉल इट सुकास्ट की बेबी कॉर्न्स क्योंकि कॉर्न एग्रीकल्चर का है ना मैं बोला सुकास्ट की बेबी कॉर्न्स and those are those startups जिनने अभी टर्नओवर उनका 1 सीआर से ऊपर है ठीक है recently we are having a exhibition in Jammu and Kashmir जहाँ पे खुद ऑनरेबल पीएम साहब आए थे और उसमें 18 स्टॉल्स गवर्नमेंट ने जो है सिलेक्ट किए थे 18 स्टार्टअप्स और 18 में से 12 स्टार्टअप इस इंक्यूबेटर किए थे अपने यूनिवर्सिटी से कई this is some of the international recognitions and ये सी हर ये जो बीच में लड़की है हर नेम मोमिना द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम सेरिकल्चर मैं अब मान के चलो सारे कोर्सेज में बट शी वाज देन परस्यूइंग द बीएससी सेरिकल्चर ये मेरे पास एक कंसेप्ट लेके आई थी बायोटेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट लेके आई थी जो सेरिकल्चर में कुछ वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से हम एक जो है इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं ठीक है ना उस वक्त वो कंसेप्ट था तो हमने वो चीजें की देन एक फेलोशिप निकली वी कॉल दैट द सुकार्टिक इनोवेशन फेलोशिप ये 1 महीना पूरा जो है आपकी गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है आपको वहां जाना पड़ता है 1 महीना वहां पे सब कुछ फैसिलिटी और आपको वहां पे इंक्यूबेशन दी जाती है एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन ईयर 2024 जहां पे हिंदुस्तान में एक ही लड़की थी वो भी कश्मीरी थी जिसको सिलेक्ट किया गया और ये किससे डिग्री से नहीं मेरे भाई ये डिग्री से नहीं ये उसकी दिमाग से और जो मैं भी डिसरप्शन बात कर रहा था जो मैं स्टार्टअप बात कर रहा था नाउ शी इज परस्यूइंग हर मास्टर्स इन टर्की समझ आया ये तो पता नहीं है आप लोगों को मत क्योंकि हमें चिट्ठी है क्या हम ये चीजें जाने क्योंकि खुदा ने भगवान ने तो लिखा है मुकद्दर है ना हमें तो वही पहुंचेगा जो मुकद्दर में लिखा है खुद करो कुछ या ना करो मुकद्दर तो लिखा चढ़ाओ ऊपर वाले को अच्छा this is an ecosystem and now these are some of the policies and now we focus basically on these are couple of startup products we have because we work on a mission we call it the patented products we are here to just trying to bridge the gap between how we can commercialize the patents in the products and that's why this university has some 109 patent grants ये आपको समझ नहीं आएगा ये ऐसे समझो कि 109 बंदे ऐसे हैं
जिसको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि दे आर द कल खराब्स। कल खराब समझ आता है? कल खराब समझ आता है? कल खराब समझ नहीं आता है? सच में? कल खराब मीन्स डिसरप्टिव कांसेप्ट्स, वी कॉल इट कश्मीरी कल खराब। ठीक है, इट मींस कि ये 109 ऐसे हैं जो हाईली इंटेलेक्टिव बंदे हैं सुकास्ट के में, जिनको एक्सेप्ट और एक्नॉलेज किया है नेशनल लेवल पे 109। और ये हर किसी की बस की बात नहीं है टू कम अप विद सॉर्ट ऑफ एन कांसेप्ट एंड having a patent in hand. And this is the first agriculture university in India having 109 patents granted. समझ आया? ज़्यादा समझ ना हो तो आप थोड़ा टाइम और बता सकते हो मेरे साथ। Why we basically work it, हमें हमारे वाइस चांसलर ने डायरेक्शन दिया है कि whenever you are indulging any sort of a practice or activity, come up with a commitment model. आप जो अभी हो, आप जो ये बातें बता रहे हो, मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, क्या ये डेटा यही होगा या 2026 में कुछ और होगा, 2027 में कुछ होगा। That's why in most of the, जब आप कल इंशाल्लाह जब आप कहीं भी प्लेसमेंट के लिए जाओगे, you have to pass by certain discussions, interviews। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? The question is कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ पाते हो? Means what's your the plan for next 5 years? क्या बोलोगे? जब हमें आज का प्लान नहीं पता, 5 साल का क्या पता होगा? हमें तो ये भी नहीं पता होता कल हमने चावल और जो सब्जी थी वो सब्जी क्या थी, वो भी नहीं पता होता, क्योंकि परेशानी। हम अब लगते छोटे एज से ही बूढ़े हो गए हैं। हमें कहाँ फुर्सत हम अपने आप की सोचेंगे, हमें कहाँ फुर्सत है कि जिस तरह हम सुबह नहाते हैं, क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई डिवाइस ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसे केमिकल तो नहीं जिससे मैं दिमाग को थोड़ा दूर हूं? नहीं, मैं तो परसों कसम से ये सोच रहा था, मुझे दिमाग ये ना आंखों में दर्द होने लगा। मैंने बोला ये निजाम क्या ऊपर वाले ने बनाया, कभी तो मैंने धोया नहीं है, आंखें तो कभी धोई नहीं मैंने, चेहरा तो धोया है कभी आंखें धोई नहीं है, इसके लिए तो कुछ बना होगा। फिर पढ़ने बैठा कि इसको एक निजाम अंदर है जिससे कुछ चीजें खुद ब खुद वाश। वैसे ही दिमाग को कैसे आप साफ करोगे, उसके लिए आपने अपने आप को आइडिएशन फेज में डालना है, सोच के फेज में डालना है। जितना सोचोगे उतना आपके न्यूरॉन्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। पता है कितने न्यूरॉन्स होते हैं? साइंस में पढ़ा होगा, कितने न्यूरॉन्स फिट है दिमाग में? हाँ जी, ये सोते नहीं कि वो अबया वाली, आप ही अबया आपके ही है, बाकी कोई नहीं है। कितने न्यूरॉन्स फिट है? 10 raised power, मैंने भी तो पढ़ा है 12th में, मगर याद फिर थोड़ा 10 raised power 8 शायद है जितने फिट है। मैं कह रहा हूँ 10 raised power 8 में हमारे 0.00001 ही चल रहा है। और कह रहे हैं कि ये जो है इस्लामिक इसमें भी है, फिलॉसफी में, जितना आप सोचोगे उतना दिमाग सोचने में मजबूर होगा, उतनी न्यूरॉन्स ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। तो जितना सोचोगे उतना दिमाग आपका आइडिया कर पाएगा। सिर्फ इट्स अ गेम ऑफ सोच। जैसे डेटा साइंस इज अ गेम ऑफ डेटा, वैसे ही आइडिएशन है, इंक्यूबेशन इज अ गेम ऑफ सोच। जितना सोचोगे उतना निकलेगा, जितना सोचोगे उतना निकलेगा। ठीक है, एक साइड करता हूँ एग्जांपल, इसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड इज माय फ्रेंड आल्सो, बट आई हैव मेंटर्ड हिम एट ए नेशनल लेवल। देयर इज अ स्टार्टअप, वी कॉल दैट द सब्जी कोठी। वो शार्क टैंक में भी आया है माय फ्रेंड। वो जो शार्क टैंक की सफर, वो इनोवेशन का सफर, वो कहाँ से कहाँ आया है वो मैं आपको बताता हूँ चलते चलते। घर से वो गया हुआ है, गर्मी बहुत, यूपी में गर्मी होती है, गर्मी है, और उसने सब्जी लाई। जैसे लाते हैं, मुझे भी कोई बोलेगा मैं सब्जी लाऊंगा, रेडा अगर नजदीक कोई मिला तो वहीं से गाजर उठा के पैसा उसको दे के वापस, उसने भी वही लाया और अंदर गया। और जो ही अंदर गया किचन में देखा मम्मा ने वो जो सब्जी है उसने खराब लाई, वो पूरी जो है उसमें पानी वानी पूरा निकल रहा था, उस पूरा सुड़ी है, श्रिंक हुई थी। इसने उसको बोला यार आपको सब्जी लानी नहीं आती, क्या सीखा हुआ ये इधर ऐसे। और ये कह रहे कि मुझे बहुत फील हुआ, मैं अंदर गया कमरे में, जब मुझे सुना रहा है, मुझे फील हुआ, मैं अंदर गया। जो ही अंदर गया दिमाग में गया यार मम्मा ने क्यों डांटा मुझे, ऐसे ऐसे कह रहे कि जब मैं थोड़ा सा मैंने अपने आप को प्रेशराइज किया, यार इतना क्या मैंने गलत किया, ना सब्जी मैंने उगाई ना कुछ की, रेडी पे थी, पैसे दे दिया, लाया तो मैंने किया। मम्मा ने बोला यार आपको सब्जी लेनी, कह रहे दिमाग में क्लिक हुआ, ये जो फार्मर है
ये तो मगर सही में प्रॉब्लम है यार, हमारी फ्रेश सब्जी कैसे मिल सकती है? ये तो इतनी तो धूप है, इसमें ये बेचारा वेंडर भी क्या कर सकता है? ये भी खुद धूप में, सब्जी भी धूप में, और पानी कितना छिड़केगा इसमें? कह रहे दिमाग में हो गया क्लिक, ये करना था ऊपर वाले का ये निजाम था, पर उसने सोचा भी हो गया। कह रहे सोचा यार क्या हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि घर पे ही आपको जो है फ्रेश सब्जी मिल जाए। कहा कि मैंने वर्कआउट किया, मैं गूगल खोल, मैं ऐसे मेरे दिमाग में कहा यार ये जो सब्जियां वब्जियां निकलती है इनमें रिफर वैनर्स में रखा जाता है, सी स्टोर्स में रखा जाता है, सी स्टोर्स, कोल्ड स्टोर्स, है ना? उससे क्या होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ एनहांस हो जाती है। कह रहे ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, और मैंने नहीं सोचा कि ये तो कोल्ड स्टोर में किया है यार, ये तो वो करेगा, मुझे क्या करना है? कह रहे कि ये आइडिएट हुआ, मैं थोड़ा करेक्ट कहूँ, देन ही कम अप, ही डिवाइज्ड अ डिवाइस, जो वो रेडा होता है 5 फीट का, सर 5 से 6 फीट का जो रेडा होता है, उसने उस रेडे को ही कस्टमाइज किया, और उसने जो फैब्रिक जो उसने बनाया, टेंट देखा है आपने? टेंट देखा है जब हम जाते हैं कहीं ऊपर ये करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैंपिंग वैम्पिंग, जो कैंपिंग टेंट है ना, उसी तरह उसने बनाया। वो फाइबर भी उसने देखा, वो फाइबर भी उसने एग्रीकल्चर वेस्ट से ही फिर बनाया, वो सारा उसने ऑटोमेट किया और उसको कंट्रोल एटमॉस्फेयर दिया। क्या दिया? उससे क्या होता है, ये जो उसने नाम ही रखा उसको सब्जी कोठी, ये ऐसी कोठी है जो सब्जी को ताजा रखे और आपकी दोगे। उससे क्या होगा? पोर्टेबल भी है, और वो ऐसे बंद होता है पूरा, इसमें मेरे पास है वो बंद होता है, फिर वो खोल के आप उसमें कोठी पे लगा सकते हो। उससे क्या होगा? एक तो आपने फार्मर को भी बचा दिया, दूसरा जो वेंडर है बेचारा उसको भी नुकसान से बचा दिया, तीसरा कि जो फैमिली हो आपको फ्रेश वेजिटेबल आपकी जो है, दिस इज द डिसरप्शन इन द मार्केट। और उसने आज तक गवर्नमेंट मीडिया से कम 2.5 करोड़ से ज्यादा ग्रांट उठाया। 2.5 करोड़ किसने दिया? ये मुझे गवर्नमेंट को मारा, 2.5 करोड़ किसने दिया? आइडिया। उसकी सोच ने, जो माँ ने उसको बोला था, वो कमरे में गया, ख्याल आया, तो ख्याल ने उसका जो है ख्याल ऐसा खोल दिया कि उसका दिमाग वो ख्यालों में तो रह गया मगर पैसों से भी भर गया। 2.5 करोड़। अगर वो क्या करता, मम्मा ने मारा, हाँ मम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा 2 दिन, जैसे करते हैं हम, उठ के दोस्त के पास, दोस्त से उधर, दोस्त से इधर, कॉफी को चाहते पहुंचते चाहते, कॉफी बिरयानी वो भी चाहते, और उसके बाद आप वही नॉर्मल जिंदगी डिग्री विग्री करके। पर अगर उसने वो आइडिया नहीं किया होता, शायद अब मैं बताऊं, सब्जी कोठी तो ठीक है, नाउ ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिज ओन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कानपुर। मैं उधर गया, और जो वो शर्ट उसने मुझे दी है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो सॉक्स ने भी दी, सॉक्स में भी दी है, तो मेरे पास है। वो सॉक्स वो बैम्बू से बनाता है मेरे भाई, और वो जो सॉक्स है उसमें स्मेल आती नहीं, और जो एरेशन हो या क्या हो, अपने दिमाग को तो एरेट किया ना उसने। मुझे मैं समझा रहा था, इसको भी देखो ये इसको कैसे ना आएंगे दिमाग को, एरेट तो किया ना। अब खुल गया एक बार उसको लगा कि यार ये नक्शा क्या है, ये तरीका क्या है। अब वो आइडिया पे आइडिया, अब वो टेंडुलकर की तरह छक्के पे छक्का मार रहा है। और ही विल बी, याद रखना, वो हिंदुस्तान का, आप एक अगर वो कोई रिकॉर्ड हो ना, कोई ऐसा बुक हो, जैसे वो होता है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, उसी में वो अपना नाम बताए। और ही इज वेरी यंग, मेरे से वो 3 साल मेरे से छोटा है, 28 शायद है वो, 28, मेरे से 3 साल छोटा, वेरी यंग। Storytelling is the crux is. Thank you, sir, for your very influential lecture, and I hope that all the participants, they will greatly benefit, because you have created such a very good ecosystem. क्या है? ये मेरी तरफ से आपको। Yes, from the MSME side.